उन लोगों को काम नहीं है। आई फील उन लोगों को काम नहीं है, उन लोगों को उनका घर वालों को ख्याल रखने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। All the students that have died, 5 or 6 students have committed suicide. I don't see it as a suicide. It's a murder committed by the state. अगर वो एक आम इंसान है, अगर बहुत ज़्यादा धरना सेठ नहीं है, तो इस गवर्नमेंट के साथ इसका इंटरेस्ट मिलता है। कल जंतर मंतर करें, ऐसा पाकिस्तान से आया क्या? हैदराबाद में बांग्लादेश से आया क्या? हर एक वीडियो के लास्ट में अपनी यूपीआई आईडी डालो और जनता अगर 20-20, 50-50 रुपया भी देगी तो आपका महीने का 1.5-2 लाख हो जाएगा। हमारे यहाँ पे आने से उनका घर नहीं चलने वाला, उनको कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं जगह। तो हमारा इतना हक तो बनता है कि फ्री में देते तो जरूर मैं लिख के दे रहा, आधे लोगों को बैंक अकाउंट नहीं है। आपका 12th एग्जामिनेशन आपके फकअप हो रहे हैं। Something is going to happen. Something is definitely going to happen. I am very happy to be part of this protest. I am very happy to support whatever is happening here. एक मजाक के तौर पे शुरू हुई पार्टी जो आज लाखों की भीड़ की शक्ल तब्दील कर चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की, जो हाल ही में बनी थी। और आज यहाँ हैदराबाद में इनका प्रोटेस्ट चल रहा है नीट पेपर लीक और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन पर। तो आइए जानते हैं उन लोगों की आवाज जो हमेशा से बोलना चाहते थे और लेंगे उनकी राय के उस बारे में क्या कहना चाहते हैं। I don't know whether this protest going to create some impact or the education minister going to resign from this or not. But I am very happy that these many people are gathered here. These many responsible citizens are gathered here and trying to do something to the students, to the country, to the people that need victims. I can say victims. I can say okay. I don't know, like the BJP government from the past 12 years, we can see farmers are protesting, students are protesting across the countries, like across the states. Protests are happening in Manipur and nowhere I can see that BJP is taking accountability for this. Okay. Yeah, I don't know whether they are going to take accountability for this or not, but something is going to happen. Something is definitely going to happen. I am very happy to be part of this protest. I am very happy to support whatever is happening here. I'm not completely supporting the party called CJP, but I am supporting the more idea of the protest that is happening here. Many people are saying this is a purely left-dominated party or funded through CIA. What do you want to say about this? What do they mean by funding by CIA? Here are students, bro. Like many students are here. Like there are. Nepal. Many things such happened in Bangladesh and Nepal previously, and now people are saying it's India's turn. Same that Gen Z protest that happened before. What do you want to say about this? No, like this is just a propaganda. Like whatever you are going to say about the government, whatever you are going to question the government, they are going to say that you are anti-national, you are Pakistani funded, you are Pakistani. Like what do they mean, bro? I am from Andhra Pradesh and I am here in Telangana right now in Hyderabad, and I am supporting this protest just because our students are suffering from the ages here. I am not funded by some Pakistani or I am not funded by some Bangladeshi. Any one of them here, nobody here are funded by Pakistani. It is just propaganda by the right wing. It is just propaganda by the fascist Modi government. और एक फिल्म आई थी दीवार, आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, अमिताभ बच्चन की फिल्म। उसमें एक डायलॉग है, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, आप सुन रहे हैं ना मेरे को? उसमें वो बोलता है कि आज मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, कार है, गाड़ी है, बंगला है, क्या है तुम्हारे पास? तो वो बोलता है मेरे पास माँ है। तो अभी धर्मेंद्र प्रधान मेरे को बोलते हैं कि विजेता मेरे पास सरकार है, मंत्री है, कुर्सी है, ईडी है, सीबीआई है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास संविधान है। What is the reason to support this movement and why should they join them? The reason to support this movement is that Say for them because they mostly don't know English. Say as easy as possible in Hindi, that is my mother tongue. So मुझे लगता है कि
जो पूरे देश में युवाओं का जो ये गुस्सा है, वो चाहे वो गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, गांव में भी रहने वाले जो यूथ है वो भी एग्जाम देते हैं, वो भी उनका भी सपना होता है कि वो भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। लेकिन अगर पेपर लीक लगातार होते रहेंगे तो इस पूरे सिस्टम पे भरोसा ही नहीं रहेगा किसी का। तो चाहे वो यूथ गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, टाउन में रहता हो, वो एग्जाम देता है, वो भी पढ़ने जाता है। अगर ये पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा तो इस देश के यूथ का कोई भविष्य नहीं रहेगा। अगर यूथ का भविष्य नहीं रहेगा तो इस देश का कोई भविष्य नहीं रहेगा। ये सबका मूवमेंट है, चाहे किसी भी पार्ट में वो रहता हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, अगर वो एक आम इंसान है, अगर बहुत ज्यादा धन्ना सेठ नहीं है तो वो इस मूवमेंट के साथ उसका इंटरेस्ट मिलता है। So by the way, we are with आवाज 4X टीम आवाज। what you say something about your channel. So this is a women-led channel. Okay. तो हम यहाँ पे सिर्फ वुमेन के बारे में बात नहीं करते. We talk about real issues. We talk about issues that affect youth, issues that affect people. So it is about human stories. Journalism has lost its importance because आजकल सब पॉलिटिकल इशू हो गया है. लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं और रियल प्रॉब्लम्स दब जाते हैं. तो हम चाहते हैं कि हम रियल इश्यूज को बाहर आके बोले, मतलब रियल इश्यूज लोगों तक पहुंचे. Because that is what news is about. That is what journalism is about. So we are here to let people's voices reach people. So here to be the voice of the voiceless. Okay. Yeah. How you consider yourself and prove yourself that you are different from others? So that is what I'm telling you. I would not defend myself. मतलब मैं नहीं बोलूंगी मेरे बारे में कुछ अच्छा. मेरा काम बोलेगा आपको. मेरे काम में आपको दिखेगा कि मैं कैसे लोगों से अलग हूँ. इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसा बता रहे, मैंने बता रहा, रोडों पे उतरना सही बात है, और देश के खातिर ऐसे आदमी को जो खुद हमारे देश में नहीं रहता, उसके द्वारा जो पार्टी बनाई गई है कांग्रेस जनता पार्टी, हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए। अब अगर हम सब यहाँ पे हैं तो हम यहाँ पे है बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि वो खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे। हमारे यहाँ पे आने से उनका घर नहीं चलने वाला, उनको कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं जब यहाँ पे। तो हमारा इतना हक तो बनता है कि हम किसी के लिए खड़े। अगर हम खुद के लिए नहीं खड़ सकते तो कम से कम उसके साथ तो खड़े जो हमारे के लिए खड़ रहा है। सावित्रीबाई फुले जी की, जिन्होंने देश की महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, और उनके साथ ही मैं एक और शख्स को याद करना चाहूंगा जो सावित्रीबाई फुले की सहेली थी, फातिमा शेख। उन दोनों ने इकट्ठे मिलकर इस देश की लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फातिमा शेख जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। My sister actually, she has completed her graduation. I am working right now, but today I am here because of my brother. He has given exam this year, and he has given so much hard work into it. And he used to sleep only 4 hours a day. He would come back from his study all at 2 a.m. in the morning, and we have seen him struggle so much throughout this year. And now they come up with the reason that a paper has leaked and they have to give that all over again, and he has to go all through that strain in this whole 1 month again. And if you ask them about the suicides of the students who have there's no willpower to do all over this again, they're telling that they will give back the 1500 money whichever was paid by the students, which is like an absolute joke. Is this how an education system in a democratic country runs? I have this question for the whole, not the ruling party, the governing party has said in this. I want the education minister to resign. If he can't do his job properly, he must resign. He does not rule this place. It's not a monarchy. It's a democratic country, and we elect you to do your job properly. We are from a marginalized community that is portrayed as marginalized, but we are not actually. And don't you have a fear to labeled as anti-national while joining in this movement? No, I don't have any fear. And if you just even like a post which speaks about your troubles which you are facing in your community, you will be labeled as anti-national in this country, which is made by this governing party. I don't know how everybody is entertaining this kind of thing. I am not afraid of being labeled anti-nationalist. I know I'm not an anti-nationalist. If I'm speaking about the problems which I'm facing and which my people are facing, I am the most nationalist person can ever be. अगर देखिए दूसरे लोग जाएंगे तो उन लोग टारगेट नहीं, जैसे आपके से लोग आपके आउटफिट से मालूम पड़ जा रहा कि आप किस कम्युनिटी से
करके। लेकिन देखिए उनसे ज्यादा खतरा तो आप जैसे लोगों को रहता है, क्योंकि वो आप आउटफिट देख के ही मालूम कर सकते, वो उनसे ज्यादा आपको टारगेट करते। क्या आपको उनके नजर में टारगेट होने का डर नहीं है? उन लोगों को काम नहीं है, आई फील उन लोगों को काम नहीं है, उन लोगों को उनका घर वालों को ख्याल रखने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाके रोडों पे टारगेट ढूंढते रहते। मैं बोलूंगी कि तुम तुम्हारा काम करो, घर वालों को पालो, फिर उसके बाद में दूसरों के बारे में सोचो। तुम्हारे दूसरों को टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारे मजहब को तुम्हारा टारगेट बनाना जरूरत है। अपनी जगह पे अपना इस्लाम अच्छा है, अपनी जगह पे वो औरत अच्छी है, उसके घर वाले हैं, उसके भाई है, उसका हस्बैंड है, सब है देख लेने वाले। तुम्हारा टारगेट बनाने की कोई जरूरत नहीं। సుఖ్దేవ్ సింగ్ రాజ్గురు వీళ్ళందరూ ఏం చేసిండ్రు? తమ ప్రాణాలను ఇచ్చిండ్రు ఈ దేశం కోసం. ఏ అంశాల కోసం ఇచ్చిండ్రు? ఏ అంశాల కోసం బలిదానం చేసిండ్రు? చెప్పరి. ఇంకలాబ్ అంటే ఏంటిది? రెవల్యూషన్, విప్లవం. ఏదైతే వ్యవస్థ మనందరినీ పీడిస్తూ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి బంధనాలు పెట్టిందో, ఏదైతే వ్యవస్థ మహిళలు, ప్రజలు, దళితులు, బహుజనులు, ఓబీసీలు, మైనారిటీలు వీళ్ళందరూ సమానం కాదని చెప్పిందో, ఆ వ్యవస్థకి వ్యతిరేకంగా భగత్ సింగ్ కొట్లాడిండు. ఆ వ్యవస్థకి వ్యతిరేకంగా ఎవరు కొట్లాడిండు? బిర్సా ముండా కొట్లాడిండు. ఆ వ్యవస్థకి వ్యతిరేకంగా ఎవరు కొట్లాడిండు? అంబేద్కర్ కొట్లాడిండు. सिर्फ मौजूदा सरकार को गिराने की कोशिश है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल के बोल रहे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई सरकार गिराएगा तो जनता को ही नुकसान है। सरकार क्या एक आएगा दूसरा बैठेगा, इसका मोटो सरकार गिराने का नहीं, सिर्फ सरकार में जो एक पर्सन है उसका रिजिग्नेशन पूछ रहे हैं। वी आर नॉट आस्किंग कंप्लीट गवर्नमेंट टू डिसॉल्व, राइट? जस्ट वी आर आस्किंग वन पर्सन टू रिजाइन, भाई, बिकॉज ही वाज नॉट टेकिंग हिज अकाउंटेबिलिटी। जिसका अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना है तो कितना बार उसका पीरियड में कितना फेलियर्स हुआ है, कितना पेपर लीक हुआ है, कितना लोग उसके लिए सफर हुआ है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी पूछ रहे हैं। इसके सरकार गिराना उठाना कोई नहीं। अगर गिराना उठाना है तो उसके पीछे बहुत कुछ कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे ब्लाइंडली लोग आके बाहर आके लड़ाई कर रहे हैं एक ही मुद्दे के ऊपर। सर फ्यूचर जनरेशन के लिए करंटली झगड़ा कर रहे हैं, उसको देखो। सरकार गिराना उठाना, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ऐसा कुछ नहीं भाई, वो अलग है, ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, सब युद्ध के हाथ में है। जैसे राइट विंग बोल रही थी कि तकरीबन इसके फॉलोअर सारे पाकिस्तानी हैं और इतने कम टाइम में इतने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और ये बस कल जंतर मंतर करे सब पाकिस्तान से आए थे क्या? हैदराबाद में कहा से बांग्लादेश से आया क्या? फिर अरे दिमाग से सोचो भाई, सोशल मीडिया जो है वो जो चला रहे आई में अभ्यास हो सकता है, लेकिन जो सच है वो देखो भाई। सोशल मीडिया में जिसका आईटी सेल मजबूत है इंडिया में सबको पता है, कौन क्रिएट कर रहा है, कौन फैला रहा है, वो भी सबको पता है। देन जरा दिमाग लगा के सोचो। देखेगा तो इतने डर में जीने की क्या जरूरत है? ये बिल्कुल गेम और शर्म की बात है। अगर भारत जैसे लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहकर राजधानी किया। I'm here as a parent. My daughter has finished her 12th and she's also appearing for entrance exams. And I know what kind of hard work and what kind of effort students put in, and how disheartening and how heartbreaking it is when the exam itself is cancelled or the paper is leaked after putting in so much of efforts and so much late nights, and all of those efforts are getting wasted. And all the students that have died, 5 or 6 students who have committed suicide, I don't see it as a suicide. It's a murder committed by the state, by the central government, because they died because of the incompetence of the government. And I don't think only resignation of the education minister would solve the problem, but I think that there should be a total reform of the system, because BJP talks a lot about Congress being a corrupted party, but there's hundreds of crores going into conducting all these national level exams, and if all this is getting wasted because of a corrupt few, doesn't this count as corruption? So BJP has committed more corruption than Congress did in all these years, and because of this, students, 22 lakh students who have paid for NEET are affected, and then many others, lakhs of students who have paid for CBSE, CUET and other exams also have affected. My daughter also had applied for CUET, but she couldn't write the exam because of some technical glitches. So 1 year is wasted because of that. Is the government accountable to that? We need a total reform of the system, and that I'm here to express my solidarity with all the students here. और ये जो लोग बोल रहे हैं ये कॉन्डेड है, ये कॉन्डेड है, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा, आधे लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, आधे लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनके अंदर पैसा कैसे आएगा? ये अगर
कैसे कर रहे वो लोग? नहीं, हम तो एंटी नेशनल कितने लोगों को एंटी नेशनल बुलाते? यहाँ पे 800,000 बच्चे सबको एंटी नेशनल बुलाते क्या? अभी इन सबको ISI से फंडेड है, CIA से फंडेड है, फंड करेगा कोई? जहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान 80 पेपर लीक हुए उनके 12 साल के टेन्योर में। भाई जैसे लोग बोल रहे हैं राइट विंग और अपोजिशन बोल रहे हैं, सुनिए जो पेपर लीक हुआ वो तो बड़ी अफसोस की बात है, स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी, लेकिन उसमें जांच चल रही, उसमें तहकीकात चल रही, लेकिन ऐसा रोडों पे उतरना तो सही बात नहीं। तहकीकात एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, 3 बार गलती हुई, हम 80 पेपर लीक हुए, 80 पेपर। अब चलो आप हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, और जो बच्चे जो गरीब फैमिली से अभी जैसे बोले वो 11 लाख का लोन लेकर बच्चा, अब उसकी क्या है, उन्हें क्या करता वो बच्चा? अब वो बच्चे को गिव कर देने का, वो ऐसे आगे रोड पे नहीं कर सकता, सही बात है, बट उसके खिलाफ हम भी आ सकते हैं ना। देखो वो बच्चा तो दुनिया से चले गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी मफिरत हो गई, जागृति का आंदोलन है, सबको जगाना कि सब अपना हक ले सके। आप समझे, ये कोई शिक्षा मंत्री बनने के लिए या कोई पार्टी खड़ा करने के लिए नहीं है। ये जो देश में गलत हो रहा है, खासकर युवा पीढ़ी के साथ, उसे सही करने का एक आंदोलन है, एक अवेकनिंग है, एक जागृति है। तो आप मेरे साथ हैं। अगर मैं कहूँ आप सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? तो ये पहले ही हम लोगों को समझना होगा, ये CJP जो है ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है जो किसी और को हटा के खुद आना चाहते हो। ये सब में जागृति लाना चाहते हैं, और यहाँ जो भी इनके शुरू करने वाले हैं सबका दिल बहुत साफ है। इसीलिए मैंने समर्थन दिया कि वो देश को जागृत करना चाहते हैं, युवाओं को अपने हक के लिए आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो मेरा मेन मकसद है, मैं एजुकेशन में अभी जो सारी चीजें हुई है, जो रिसेंट चीजें हुई है, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस चीज के लिए आया हूँ। मेनली मेरा ये मानना है कि जो एजुकेशन है एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत बड़ा महत्व प्ले करता है। मतलब आप Tier 3 सिटी से आओ, Tier 4 सिटी से आओ, तो आपको एजुकेशन एक लेवल देता है कि आप वो एग्जाम देख के सेम इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, जो चाहे Tier 1 का सिटी का बच्चा जाए या Tier 4 सिटी का बच्चा जाए। अब उसमें आपका पेपर लीक हो रहा है, उसमें आपका 12th का एग्जामिनेशन में आपके फकअप हो रहे हैं, उसके बाद में SSC एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो रहे हैं। अगर ऐसे पेपर लीक होते रहा तो इंडिया में जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो तो होते रहेगा, और जो Tier 3 Tier 4 सिटी का बच्चा है उसको तो कभी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी भी नहीं कि वो कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके कुछ अच्छा कर पाए। तो इस वजह से मैं आया हूँ। और इसके बाद भी आपका मतलब हर एक लेवल पे चैलेंजेस है। आपके स्कूल अच्छे नहीं है, आपके IIT NIT के अलावा आपके कॉलेजेस अच्छे नहीं है, तो आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है। और इंडिया को आजाद हुए इतने साल हो गए, उसके बाद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम पे कुछ भी अच्छे से ध्यान नहीं हुआ है। तो इस वजह से मैं आया हुआ आज। जैसे कि लोग बता रहे थे कि मोस्टली ये राइट विंग क्लेम करती है कि इसके फॉलोअर्स ज़्यादातर दूसरी कंट्री के हैं, और ये एक फॉरेन मूवमेंट है जो बाहर से फंड किया जा रहा है, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश में ऐसे ही कुछ छोटे मुद्दे थे जो स्टूडेंट्स द्वारा उठाए गए थे, उसी को एक बहुत बड़ा मूवमेंट बना के वहाँ की सरकार चेंज कर दी गई थी। वैसे ही इंडिया में भी करा जा रहा है करके ऐसा राइट विंग क्लेम कर रही है। इसका क्योंकि ऐसा मतलब क्यों करा जा रहा है? क्योंकि हम जब अपने लिए आवाज उठा रहे हैं तो लोगों को दिक्कत हो रही है, और इस बात पे हो रही है कि हमारा जो यूथ, जो क्राउड है, जो पॉपुलेशन है, वो सबसे ज्यादा है अभी इंडिया में। तो इस चीज को लेके उन्हें इस चीज का डर शायद लग रहा है कि अगर हमने आवाज उठाया तो वो लोग अपना मुंह कहाँ छुपाएंगे। मुझे यही कहना है, क्योंकि आप हो, मैं, आप सब लोग इस देश का नेक्स्ट जनरेशन है जो एक दूसरे के लिए खड़े होने वाले हैं। हमारे लिए कोई और खड़ा नहीं होगा, खुद को खड़ा होना है इस चीज के लिए, चाहे ये एक मेल हो या फीमेल हो, दोनों को समझना है कि हम अपने लिए खड़े हो रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। फ्री में देते तो दे दो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने लिए खड़े होइए, एटलीस्ट अपने लिए आवाज उठाइए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। कोई भी अपने लेवल पे क्या कर सकता जो कि इस मूवमेंट को सपोर्ट करना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट अपने इस चीज़ को समझो कि मेरा जो कहना था कि हम अपने लिए खड़े हो रहे हैं, हम किसी और के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हम जो बढ़ती यूथ है, मैं, मेरा इन फ्यूचर जो भी है,
हम अपने लिए खड़े हो रहे हैं। अगर घर पे भी हो तो एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो आप अपनी पढ़ाई जो भी अभी जो लीक हुआ है पेपर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग जो हमारा फ्यूचर खराब कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट हम यूथ के हमारे लिए मतलब इन फ्यूचर हम जो होंगे हम सफर करेंगे। आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप सफर नहीं करेंगे। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच। या सर, का शेर मुझे याद आ गया, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। तो हमें एकजुट रहना है, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमें सवाल पूछने हैं और जरूर हमारी जीत होगी। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और पेपर लीक बंद होगी, एजुकेशन फ्री।